انگریزی زبان کے ان اسباق کا سلسلہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں انگریزی بہت ہی معمولی ہے، برائے نام آتی ہے انگریزی. تو آج اس پہلے سبق میں ہم از آر ایم کا جملوں میں استعمال دیکھیں گے، اور ہم کسی سے اپنا تعارف کس طرح کراتے ہیں، اپنے بارے میں ہم کسی کو کس طرح بتاتے ہیں، کیا کیا بتلاتے ہیں، وہ جملے دیکھیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اب ہم جب پہلے کسی سے ملتے ہیں تو ہیلو، گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ یا گڈ آفٹرنون، گڈ ڈے، کچھ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد جب ہم اپنے بارے میں بتانا شروع کرتے ہیں تو ہم کس طرح اپنے بارے میں بتلا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اطلاع، زیادہ سے زیادہ جانکاری ہم کس طرح دے سکتے ہیں. مثلا آئی ایم نہال. اب یہاں آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں. آئی ایم کے بعد آئی ایم نہال، آئی ایم انجم، آئی ایم کبیر، جو بھی آپ کا نام ہو. آئی ایم نہال، آئی ایم نہال، اسے ہم آئی ایم نہال بھی کہہ سکتے ہیں. آئی ایم نہال یا آئی ایم نہال، کیونکہ بول چال میں آئی ایم نہال بھی بہت استعمال ہوتا ہے. آئی ایم نہال یا آئی ایم نہال، یعنی یہاں آپ اپنا نام بتلا رہے ہیں کسی کو. آئی ایم نہال یا آئی ایم نہال. اب آپ اگر یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کہیں گے مثلا اگر آپ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں تو آپ کہیں گے آئی ایم فرام لکھنؤ، آئی ایم فرام لکھنؤ، آئی ایم فرام لکھنؤ، آئی ایم فرام لکھنؤ یا آئی ایم فرام لکھنؤ، دونوں کہہ سکتے ہیں. آئی ایم فرام لکھنؤ یا آئی ایم فرام لکھنؤ، یعنی میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں. انگریزی زبان کے اس جملے کا لفظی ترجمہ تو ہوا میں لکھنؤ سے ہوں، لیکن اردو میں اس طرح نہیں بولتے ہیں کہ میں لکھنؤ سے ہوں. اردو میں تو ہم اسی طرح بولیں گے کہ میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں. اس لیے آئی ایم فرام لکھنؤ کا اردو میں ترجمہ کرنا ہو تو میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں. آئی ایم فرام لکھنؤ یا آئی ایم فرام لکھنؤ، آئی ایم فرام لکھنؤ یا آئی ایم فرام لکھنؤ. اب آپ کو اگر اپنی عمر بتلانی ہے تو اس کے دو طریقے ہیں. مثلا میری عمر 63 سال ہے تو میں کہوں گا آئی ایم 63، آئی ایم 63، یعنی میں 63 سال کا ہوں. اسے کہنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، آئی ایم 63 ایئرس اولڈ، یعنی میری عمر 63 سال ہے. آئی ایم 63 ایئرس اولڈ، آئی ایم 63 بھی کہہ سکتے ہیں یا آئی ایم 63 ایئرس اولڈ. دونوں جملے استعمال کر سکتے ہیں. دونوں کے مطلب ہوا میں 63 سال کا ہوں. اب اگر آپ کو بتلانا ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، آئی ایم میریڈ، آئی ایم یا آئی ایم میریڈ، میں شادی شدہ ہوں. آئی ایم میریڈ. آئی ایم 190 سینٹی میٹر ٹال، آئی ایم 190 سینٹی میٹر ٹال، یعنی میں 190 سینٹی میٹر لمبا ہوں، یعنی میری لمبائی 190 سینٹی میٹر ہے. آئی ایم 190 سینٹی میٹر ٹال، میری لمبائی 190 سینٹی میٹر ہے. اب دیکھیے، ہیلو جب آپ نے کہا تھا شروع میں تو اس کی جگہ ہائے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہائے ایک غیر رسمی جملہ ہے، غیر رسمی طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی انفارمل طریقے سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہائے ہم ہر کسی سے نہیں کہہ سکتے، اپنے سے بڑوں سے نہیں کہہ سکتے. یہ ہم اپنے برابر والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے چھوٹوں سے کہیں گے ہائے. ہیلو کی جگہ استعمال ہوتا ہے ہائے، لیکن ہائے ہم ہر کسی سے نہیں کہہ سکتے. ہیلو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے دوستوں سے بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے بڑوں سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہائے ہم صرف اپنے سے چھوٹوں سے، اپنے سے دوستوں سے، اپنے برابر والوں سے ہی کہتے ہیں. اب جیسے ہم نے پہلا جملہ تھا ہمارا آئی ایم نہال، وہ بتایا تھا. اب آپ کو یہ تو آپ نے اپنے بارے میں بتلا دیا تھا، آئی ایم نہال، میں نہال ہوں. آپ کو کسی کے بارے میں کسی کے متعلق پوچھنا ہے،
अब आप कहेंगे हु आर यू. हु आर यू का मतलब हुआ आप कौन हैं. हु आर यू, आप कौन हैं. हु आर यू, आप कौन हैं. अगर आपसे कोई पूछता है हु आर यू, तो आप अपना नाम बता सकते हैं. आई एम निहाल, या जो भी आपका नाम है. व्हाट इज़ योर नेम. व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है. व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है. अब इन दोनों जुमलों का, इन दोनों सवालों का जवाब आपको पता ही है, शुरुआती जुमलों में बताया जा चुका है. आई एम निहाल, ये जो भी आपका नाम है. वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के रहने वाले हैं. वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के रहने वाले हैं. अब इसके जवाब में आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया, आई एम फ्रॉम जर्मनी, जहाँ के भी रहने वाले हो. तो वेयर आर यू फ्रॉम, यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं. और आई एम फ्रॉम लखनऊ, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ. अच्छा, वेयर आर यू फ्रॉम, इसके बजाय एक और जुमला हम इस्तेमाल कर सकते हैं. वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं. वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं. वेयर डू यू लिव. ये जुमला हालांकि अभी नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हम इस आर एम के इस्तेमाल वाले जुमले देख रहे हैं. ये आगे बाद के असबाक में आना चाहिए था, लेकिन बहरहाल यहाँ आ गया है. वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के रहने वाले हैं. वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के रहने वाले हैं. वेयर डू यू लिव, या आप ये भी पूछ सकते हैं. हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है. हाउ ओल्ड आर यू. अब इसके हाउ ओल्ड आर यू, आप की उम्र कितनी है. तो जाहिर है आप इसके जवाब में कह सकते हैं आई एम 63 या आई एम 63 ईयर्स ओल्ड. दोनों ही जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं. आपकी जो भी उम्र हो वो बता सकते हैं. आई एम 20, आई एम 30, आई एम 40, आई एम 50 ईयर्स ओल्ड. ईयर्स ओल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आर यू मैरिड. आर यू मैरिड. अब आर यू मैरिड के जवाब में आप कह सकते हैं येस आई एम मैरिड, नो आई एम नॉट मैरिड. चलिए इसके जवाब आगे भी आएंगे. अब कहीं कुछ लोग हैं बैठे हुए हैं और आप किसी शख्स को आप तलाश कर रहे हैं. आप उस शख्स को नहीं पहचानते हैं. कुछ लोग बैठे हुए हैं, किसी शख्स को आप तलाश कर रहे हैं, आप उस शख्स को नहीं पहचानते हैं. मसलन आप निहाल को नहीं पहचानते हैं. तो कई लोग बैठे हुए हैं, तो किसी साहब ने पूछा आर यू निहाल, क्या आप निहाल हैं. आर यू निहाल, क्या आप निहाल हैं. अब अगर आप निहाल नहीं हैं तो कहेंगे नो आई एम नॉट निहाल. नो आई एम नॉट निहाल, नहीं मैं निहाल नहीं हूँ. नो आई एम नॉट निहाल, नहीं मैं निहाल नहीं हूँ. आर यू फ्रॉम लखनऊ, क्या आप लखनऊ के रहने वाले हैं. आर यू फ्रॉम लखनऊ, क्या आप लखनऊ के रहने वाले हैं. आर यू फ्रॉम लखनऊ, क्या आप लखनऊ के रहने वाले हैं. येस आई एम फ्रॉम लखनऊ, हाँ मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ. हाँ मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ. येस आई एम फ्रॉम लखनऊ, हाँ मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ. अब अगर आप लखनऊ के रहने वाले नहीं हैं तो आप कह सकते हैं नो आई एम नॉट फ्रॉम लखनऊ. नो आई एम नॉट फ्रॉम लखनऊ, नहीं मैं लखनऊ का रहने वाला नहीं हूँ. नो आई एम नॉट फ्रॉम लखनऊ, नहीं मैं लखनऊ का रहने वाला नहीं हूँ. आप जहाँ के रहने वाले हों आप कह सकते हैं, आप उस जगह का नाम ले सकते हैं. आई एम फ्रॉम अलीगढ़, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ. आई एम फ्रॉम अलीगढ़, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ. आर यू सिंगल या आर यू मैरिड, दोनों जुमलों का एक ही मतलब हुआ. आर यू सिंगल यानी या आर यू मैरिड, दोनों ही जुमलों का मतलब हुआ क्या आप शादीशुदा हैं. आर यू सिंगल, क्या आप गैर शादीशुदा हैं. आर यू सिंगल का मतलब हुआ क्या आप गैर शादीशुदा हैं, क्या आप अकेले हैं, क्या आपकी शादी नहीं हुई. आर यू सिंगल, क्या आप गैर शादीशुदा हैं. आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं. आर यू सिंगल, क्या आप गैर शादीशुदा हैं. यानी आर यू सिंगल, क्या आप कुंवारे हैं. आर यू सिंगल, क्या आप कुंवारे हैं. आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं. आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं.
अब आप शादीशुदा हैं तो क्या जवाब देंगे? येस आई एम मैरिड, हाँ मैं शादीशुदा हूँ। येस आई एम मैरिड, हाँ मैं शादीशुदा हूँ। और शादीशुदा नहीं है तो क्या जवाब होगा आपका? नो आई एम नॉट मैरिड, नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ या मेरी शादी नहीं हुई। नो आई एम नॉट मैरिड, नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ या मेरी शादी नहीं हुई है। ही इज़ ए डॉक्टर, वो डॉक्टर है। ही इज़ ए डॉक्टर, वो डॉक्टर है। ही इज़ ए टीचर, ही इज़ ए पेंटर, ही इज़ एन इंजीनियर, जो भी हो कह सकते हैं। ही इज़ ए डॉक्टर, वो डॉक्टर है। ही इज़ नॉट ए डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है। ही इज़ नॉट एन इंजीनियर, वो इंजीनियर नहीं है। ही इज़ नॉट ए पेंटर, वो पेंटर नहीं है। इज़ ही ए डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर है? इज़ ही ए डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है? येस ही इज़ ए डॉक्टर, हाँ वो डॉक्टर है। येस ही इज़ ए डॉक्टर, हाँ वो डॉक्टर है। नो ही इज़ नॉट ए डॉक्टर, नहीं वो डॉक्टर नहीं है। नो ही इज़ नॉट ए डॉक्टर, नहीं वो डॉक्टर नहीं है। ही इज़ एन इंजीनियर, वो इंजीनियर है। ही इज़ एन इंजीनियर, वो इंजीनियर है। ही इज़ एन इंजीनियर, वो इंजीनियर है। आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप तालिब इल्म हैं? आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप तालिब इल्म हैं? अगर आप तालिब इल्म नहीं है तो कहेंगे नो आई एम नॉट ए स्टूडेंट, नहीं मैं तालिब इल्म नहीं हूँ। नो आई एम नॉट ए स्टूडेंट, नहीं मैं तालिब इल्म नहीं हूँ। आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूँ। आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूँ। अब देखिए कुछ और जुमले देखते हैं। यू आर थर्स्टी, यू आर थर्स्टी यानी आप प्यासे हैं, आपको प्यास लगी है। यू आर थर्स्टी, आप प्यासे हैं या आपको प्यास लगी है। शी इज़ हंग्री, वो भूखी है या उसे भूख लगी है। शी इज़ हंग्री, वो भूखी है या उसे भूख लगी है। इज शी थर्स्टी, क्या उसे प्यास लगी है या क्या वो प्यासी है। इज शी थर्स्टी, क्या वो भूखी, क्या वो प्यासी है या क्या उसे प्यास लगी है। नो शी इज़ हंग्री, नहीं वो भूखी है। नो शी इज़ हंग्री, नहीं वो भूखी है। नहीं उसे भूख लगी है। नो शी इज़ हंग्री, नहीं उसे भूख लगी है। अब ये था हमारा पहला सबक। अब आपको जो भी पूछना हो सवाल आप हमें orientlanguagelab@gmail.com पर अपने सवाल भेज सकते हैं। इस सबक में कोई चीज़ आपकी समझ में ना आई हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आपके जवाब हम एक और वीडियो के ज़रिए देंगे। इस तरह आपके हर सवाल का जवाब हम वीडियो के ज़रिए देंगे। हमें इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का कि आपको ये सबक कैसा लगा, आपको इस सबक में और क्या क्या चाहिए, ताकि हम उसी के लिहाज से अपने इन असबाक को बेहतर से बेहतर बना सकें।